So today we will do the two problems. One problem, as I have already discussed, that what is the condition at maximum transformer efficiency. In the last class I have talked about efficiency, and I have defined efficiency as power output over power input. Then I have told you that power output is generally given. Okay, so we define the efficiency in terms of power output only, and we write down as efficiency is equal to P out upon P out plus losses. Clear? Losses I have already told you two types, iron loss and copper loss. So I am writing in terms of mathematics now. Is it clear? Mathematics in the sense, suppose you have terminal voltage as V2. This terminal voltage is across the secondary winding. Across the secondary winding. What will be the current? I2. And let the power factor be cos phi 2. Okay, this is clear. So I can write down plus losses are of two types. One is iron loss, so I have represented by P iron. Another will be copper loss. Now, how much? This is the rated current. This I2 is your. I have already given you the explanation regarding what a rated current is. Is it clear? So, mind it, it is not necessary that transformer will always operate at rated current. ये जरूरी नहीं है कि ट्रांसफॉर्मर हमेशा रेटेड करंट पर ही ऑपरेट होगा, वो उससे कम पे भी ऑपरेट हो सकता है. जैसे रेटेड करंट 10 एम्पियर है तो वो 5 एम्पियर पे हो सकता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, इन टेक्निकल लैंग्वेज क्या बोलेंगे, हाफ फुल लोड. The transformer is operating at 5 divided by 10 is how much? Half. Suppose it is operating, rated current is say 10 ampere and operating current is 2.5 ampere. Okay, so how much will be the fraction of full load current, this operating current? Will it be there? Will it be there or not? So how I will speak technically? The transformer is operating at 1/4 of the full load current. 1/4 of the full load current. Suppose the operating current is 7.5 ampere. Full load current is how much? Operating current is how much? So how much will be the fraction of full load? Do you agree? So how will I speak technically? The transformer is operating at 3/4 of the full load. So this type of language you will find in all type of questions. In your numerical question, the transformer is operating at 3/4 of the full load current. Then you should understand, first of all calculate the full load current and then find out the 3/4, it will be your corresponding I2. Is it clear or not? Now, here while deriving the condition for maximum efficiency, what is my topic today's?
condition for maximum efficiency. You got my point or not? Okay. So I am taking a very general result. I have assumed that this is what I2 is what my rated current, not a normal operating current, but it is a rated current. I have write down output power V2 I2 cos phi 2 upon output plus losses. Output is again V2 I2 cos phi 2 plus iron loss. Iron loss are constant or fixed losses plus copper losses. Now, how much copper loss will be there? I, which I2 square RE2, because I am referring all quantities on secondary side. Is it clear? So secondary side, how much current is flowing? I2 is flowing, rated current. So as per formula I2 square, and what will be the resistance? Because total copper loss I am taking. R equivalent 2. What do you mean by R equivalent 2? Let me clear. Clear? Had I been written R equivalent 1, then it would be R1 plus R2 dash. Clear? But since I am talking on the secondary side, output is where on the secondary side, therefore I have taken deliberately R equivalent. This is clear or not? Now I have to find out the condition for the maximum efficiency. So what I will do, what is the variable here? आपने मैथमेटिक्स पढ़ी होगी. मैथमेटिक्स में जब आप डिफरेंशिएशन पढ़ते हैं तो किसी इक्वेशन का मैक्सिमा या मिनिमा निकालना क्या करते हैं आप? उसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकालते हैं और उसको इक्वेट टू क्या करते हैं? 0. यहां पर भी हमें क्या निकालना है? कंडीशन फॉर मैक्सिमम. आई हैव टू फाइंड आउट द करंट, the value of the current at which the maximum efficiency will occur. Is it clear? Mind it, don't think that maximum efficiency will occur at full load current only. This is a misnomer. Is it clear? It will occur at some other current. What is that current? That we will find out with the help of this formula, with this equation. Now this is the equation for our efficiency. Okay. Now I have to find out the maximum condition for this variable efficiency. What I will do? What is variable here? I2. Keeping power factor constant. Keeping power factor and voltage I will keep constant. So what is variable now? Rated. This is my current I2. Clear or not? Okay. So I will differentiate with respect to I2 and equate it to 0. Clear? Now you know how to solve it. This I2 is variable on numerator also. है कि नहीं है? और ये I2 आपके वेरिएबल डिनोमिनेटर में भी है. अरे है कि नहीं? दो एक्सप्रेशन है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, वेरिएबल क्वांटिटी दोनों के साथ है. कौन सी? I2. तो आपको डिफरेंशिएशन ऑफ ए फ्रैक्शन आता है, x अपॉन समथिंग दिया, fx अपॉन fx1 अपॉन fx2 दिया हुआ हो तो कर सकते हैं. वही हमें प्रोसीजर यहाँ अप्लाई करना है और अल्टीमेटली व्हेन यू विल सॉल्व इट you will find the following condition. What is that? Got my point? When you solve it, differentiate it with, I am not doing that differentiation, you do at your home, will not waste time, it's a mathematical exercise.
इज इट क्लियर? पहले एक्सप्रेशन, ये एक्सप्रेशन, फिर इसको करेंगे तो अल्टीमेटली हमारे पास ये कंडीशन आएगी, क्या आएगी? आयरन लॉस इज इक्वल टू कॉपर लॉस। तो ट्रांसफॉर्मर में जब मैक्सिमम एफिशिएंसी होगी तब आयरन लॉस किसके बराबर हो जाएगा? कॉपर लॉस के बराबर। ये हमेशा याद रखना, ये इंटरव्यू में क्वेश्चन भी पूछा जाता है और आपको ये डिराइवेशन भी पूछा जा सकता है। फाइंड आउट द कंडीशन ऑफ करंट एट विच मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ द ट्रांसफॉर्मर अकर्स। सो एट मैक्सिमम एफिशिएंसी copper loss will be equal to iron loss. Now we will do one numerical, very important. What is that numerical? First of all, write down the numerical. A 10 kVA, a 10 kVA, I must write down on the board also. A 10 kVA, comma 2500 oblique 250 volt single phase transformer gave the following test results. Gave following, basically it is transformer, following test results. What are that? Now see, first of all it is clear what is the power rating? 10 kVA. What is the voltage? Primary side 2500, secondary side, this is secondary is LV and primary is HV. Clear? What else? It is a single phase, not three phase transformer. Now two tests are being performed. What are the tests? Short circuit and now the results I am writing down. Write down first part, calculate efficiency at 1/4, 1/2, 1 and 1/4 of full load at 0.8 power factor. Clear? Clear or not? Transformer rating. These are two tests. ओपन सर्किट टेस्ट में किस साइड करते हैं जनरली? एलवी साइड. वही इसने किया. क्या लगाते हैं? एलवी साइड में कितना वोल्टेज लगाते हैं? रेटेड वोल्टेज. रेटेड वोल्टेज कितना है? इसने कितना लगाया? क्लियर? करंट मेजर किया एमीटर से, कितना आया और पावर कितनी आई जो वॉट मीटर से मेजर की, कितनी आई? ये क्लियर हुआ. दूसरा और कौन सा टेस्ट परफॉर्म किया? शॉर्ट सर्किट टेस्ट. अब देखिए मैंने क्या बताया कि शॉर्ट सर्किट टेस्ट इज परफॉर्म्ड ऑन एचवी साइड. इज इट क्लियर?
मगर आप कंफ्यूज मत होना, उसमें हम क्या फ्लो करवाते हैं? रेटेड करंट। क्या फ्लो करवाते हैं? रेटेड करंट। कल मैंने रीजन भी बताया था कि एचवी साइड पे रेटेड करंट कम होगा। इज इट क्लियर? हालांकि उस रेटेड करंट को फ्लो करवाने के लिए जो वोल्टेज चाहिए वो बहुत कम होगा। आप देख सकते हैं, यहां रिजल्ट देखिए। मगर पहले चेक करिए क्या ये रेटेड करंट है? इज इट दैट रेटेड करंट? हाउ टू चेक इट? नाउ दिस इज बीइंग परफॉर्म्ड on HV side. What is HV side voltage? 2500 divide, so find out 10 into 1000. What does this mean by 10 into 1000? 10 kVA. 10 kVA means 10 into 1000 volt ampere. And what is okay. So 10 into 1000 divided by 2500. Is it clear? Now solve it. Volt ampere multiplied by volt will give you what? Ampere. That is rated current. अरे समझ में आया कि नहीं आया ये? So how much current it is there? So important point, mind it, very important point I am telling you. This question will take into account all your problems. मैंने आपको थ्योरेटिकली क्या बताया कि शॉर्ट सर्किट टेस्ट कब परफॉर्म किया जाता है? शॉर्ट सर्किट टेस्ट कब परफॉर्म किया जाता है? एट रेटेड करंट, एट रेटेड करंट. बट इन दिस केस द test is performed at not rated current but at a current less than rated current, 3 ampere. What is rated current? What is rated current? 4 ampere. But how much current it has flowing in the on the HV side? 3 ampere. Sure? Do you agree or not? Means इससे क्या कंक्लूजन निकला? अच्छा, दूसरी बात, ये ओपन सर्किट में जो रेटेड वोल्टेज पे किया गया है, जब मैंने आपको थ्योरेटिकली समझाया था तो मैंने क्या कहा था? वॉटमीटर की रीडिंग जो होती है वो क्या शो करती है? आयरन लॉस. तो एक कंफर्म हो गया हमारा कंक्लूजन. व्हाट? पी आयरन इज हाउ मच? ये क्लियर हो गया? बिकॉज इट इज परफॉर्म्ड एट रेटेड वोल्टेज एंड देयरफॉर दिस इज क्लियर. नाउ रिगार्डिंग कॉपर लॉस, शॉर्ट सर्किट टेस्ट में अगर रेटेड करंट पे उसने वर्क किया है तो जो वॉटमीटर रीडिंग शो करेगा वो क्या शो करता है? फुल लोड कॉपर लॉस. क्या रिप्रेजेंट करता है? फुल लोड कॉपर लॉस. इज इट क्लियर? मगर ये किस पे ऑपरेट कर रहा था? इट इज ऑपरेटिंग एट 3 एम्पियर. एंड व्हाट इज रेटेड? सो विद द हेल्प ऑफ दिस डेटा वी विल फाइंड आउट हाउ मच इज द रेटेड कॉपर लॉस और फुल लोड कॉपर लॉस. रेटेड मतलब फुल लोड कॉपर लॉस. अभी ये जो लॉस आएंगे 45 वॉट, ये क्या है? ये भी कॉपर लॉस ही है. क्यों? क्योंकि कौन सा टेस्ट परफॉर्म किया हुआ हमने? बट दिस कॉपर लॉस इज एट व्हाट करंट? दिस कॉपर लॉस इज एट 3 एम्पियर. दिस कॉपर लॉस इज नॉट एट 4 एम्पियर. सो फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई टू कन्वर्ट इट एट 4 एम्पियर. You got my point? You understand the thing or not?
How to calculate it? How to calculate it? No, I square is there. You know, at 3 ampere, it is 45 watt. You got my point? Okay? Then what will be the copper loss at 4 ampere? Huh? 45 multiplied by 4/3 square. अरे क्लियर? अरे क्लियर है कि नहीं है? क्या कोई दिक्कत है? नहीं समझ में आया? बताओ मैं कैसे किया. देखो, ये होगा copper loss at 3 ampere will be equal to how much? I square, that is 3 square into R equivalent to sorry, ये होगा I square R होता है नहीं, तो RE2 को मैंने एज इट इज लिख दिया. दिस इज क्लियर? ये होगा 4 एम्पियर पे, रेटेड पे. अरे होगा कि नहीं होगा? डिवाइड बोथ, व्हाट विल गेट? P कॉपर 3 एम्पियर अपॉन P कॉपर 4 एम्पियर इज इक्वल टू, ये कैंसिल हो जाएंगे, पीछे क्या बचेगा? 3 स्क्वायर अपॉन, नो आई नो दिस, इसकी वैल्यू जानता हूं ना, कितनी है? 45. एंड आई एम, दिस इज अननोन, सो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन आई कैन सॉल्व इट. कितना आएगा? सेम. आप सोच रहे होंगे मैंने ऐसे कैसे अब समझ में आ गया ये कैसे आया. सो व्हेन यू कैलकुलेट इट, हाउ मच इट कम्स आउट टू बी 9955 एंड दिस 16 5 जा 80 watt. Everybody is getting this answer. So my full load copper loss is nothing but 80 watt. So this is a very important part. In general, what happens, student think the sir has told that in the short circuit test, whatever the power is coming is nothing but full load copper loss. No, it is not always right. It is right only when your transformer is operating at rated current. अगर आपका ट्रांसफॉर्मर रेटेड करंट पे नहीं ऑपरेट कर रहा है तो फिर आप उससे कन्वर्ट करके निकालिए कि उसका रेटेड या फुल लोड कॉपर लॉस कितना है, जो ये तरीका. इसलिए मैंने डेलिबरेटली ये क्वेश्चन लिया. वही समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, तो फुल लोड कॉपर लॉस आ गया. आयरन लॉस फिक्स रहते हैं क्या? आयरन लॉस लोड पे डिपेंड होते हैं? Is iron loss is dependent on load? No, they are independent of load. They remain fixed at whatever load it is operating. ठीक है, तो आयरन लॉस निकल गए और कॉपर लॉस निकल गए. अब क्या क्वेश्चन पूछा है? कैलकुलेट द एफिशिएंसी एट 1/4 ऑफ द फुल लोड. पहला पार्ट क्या है? 1/4 ऑफ द फुल लोड. उसके बाद हाफ भी है, 3/4 भी है, 1/4 भी है. तो सबसे पहले हम पहला पार्ट लेंगे. एफिशिएंसी एट 1/4 फुल लोड. क्लियर? अरे समझ में आया कि नहीं आया? फुल लोड मीन्स 10 kVA. Full load means 1/4 full load means 10 kVA multiplied by 1/4. Clear?
अरे समझ में आया कि नहीं आया भाई? ये या तो लोड के टर्म्स में या पावर के टर्म्स में, ठीक है? ये बात समझ में आई कि नहीं आई कि कैसे 1/4 ऑफ केवीए हुआ? एनी ऑब्जेक्शन? सो 10 इंटू 1000 मल्टीप्लाई बाय 1/4 मल्टीप्लाई बाय एफिशिएंसी निकालते वक्त क्या देखते हैं? VI2 cos phi2, तो VI तो निकाल दिया, VI लोड कितना है 1/4, तो ये VI निकल गया। पावर फैक्टर कितना दिया हुआ है? 0.8। ये आपका क्या हुआ? P आउट। क्या हुआ? P आउट। अब आते हैं डिनोमिनेटर में। डिनोमिनेटर में एक तो क्या होगा? P आउट होगा। अरे होगा कि नहीं होगा? ये का ये 10 इंटू 1000 इंटू 1/4 इंटू 0.8 प्लस लॉसेस। लॉसेस निकाले कुछ? क्या निकाले? आयरन लॉस तो निकाल दिए, फिक्स्ड है। कितने थे? 50। ओके, प्लस अब क्या निकालना है? लेकिन कॉपर लॉस कौन से? 1/4। हमने डेटा से फुल लोड कॉपर लॉस निकाल दिए, कितने आए? 80 वॉट। अरे आए कि नहीं आए? ठीक है। और कल मैंने बताया था कि कॉपर लॉस एज अदर लोड, अदर मीन्स फ्रैक्शन ऑफ दैट फुल लोड इज नथिंग बट x² मल्टीप्लाई बाय फुल लोड कॉपर लॉस। अब यहां x कितना है? 1/4। x² कितना हो जाएगा? 16। 1/16 multiplied by full load copper loss will give you the copper loss at 1/4 full load. So it will be 1/4 whole square multiplied by 80 into 100 in order to have percentage efficiency. Clear? So now you calculate it, how much it is coming. Can anybody can give me the result? Oh yes, it comes out to be clear. अरे समझ में आया कि नहीं है? Now one important thing, what is the B part of this? A में फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट क्या है? एफिशिएंसी एट what will do? Just speak out from your side. 10 into 1000 multiply by 1/2 multiply by upon 10 into 1000 multiply by half into 0.8 plus 50 plus half square into, is it clear? Now x became what? X is half full load means half. So half का square 1/4. 1/4 of 80 is how much? 40. नहीं, 1/4 of 80 is 20. Clear? अब आप ऐड कीजिए, कैलकुलेट कीजिए, कितना आ रहा है? Now you can see, I have already told you, the transformer is a device which has the highest efficiency. आप मोटर ले लीजिए, एसी मोटर ले लीजिए, डीसी मोटर ले लीजिए, सिंक्रोनस मोटर ले लीजिए, उन सब में जिसकी एफिशिएंसी सबसे हाईएस्ट है वो कौन है? रीजन भी मालूम है, बिकॉज इट इज ए स्टैटिक डिवाइस। ये क्या है? स्टैटिक डिवाइस है। अब आप यहां से भी न्यूमेरिकल भी दिए, ये सारे कोई झूठे आंकड़े नहीं है, these are not fake
डेटा, दे आर रियल डेटा ऑन विच बेस्ड न्यूमेरिकल्स हैव बीन फॉर्म। आप खुद एक्सपेरिमेंट करेंगे यही रिजल्ट पाएंगे। अगर एक 10 केवीए के ट्रांसफॉर्मर पर एक्सपेरिमेंट करेंगे यही रिजल्ट आएंगे। और आप देखिए एफिशिएंसी कितनी आ रही है, 97। जैसे जैसे लोड बढ़ रहा है एफिशिएंसी भी बढ़ी कि नहीं बढ़ी? अरे समझ में आया कि नहीं आया? इसी प्रकार आप फुल लोड पे भी निकाल सकते हैं। फुल लोड में क्या हो जाएगा, यहां 1/4 की जगह क्या हो जाएगा, 10 इंटू 1000 इंटू 1 इंटू 0.8 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 1000 इंटू 1 इंटू 0.8 प्लस 50 प्लस 80. Just calculate how much it is coming. Huh? 98 point. Clear? Now you can do the last one also. It at wet load 1/4 full load, that is 5/4 full load. So instead of 10 into 1000 into 5/4 into 0.8 upon 10 into 1000 into 5/4 into 0.8 plus 50 plus 5/4 whole square into 80. Calculate it, how much it is coming? Huh? 98 point. देखिए how much efficiency at full load? It has increased or decreased? Decreased or not? So that is why it is always advisable not to load any device beyond its limit. आप उसको फुल लोड तक तो करोगे तब तो अपनी वो अच्छी एफिशिएंसी के साथ करेगा, लेकिन उससे ज्यादा 1/4 क्या फुल लोड से भी ज्यादा आपने करंट 1.25 एम्पियर कर दिया, इज इट नॉट? ठीक है, मान लो 10 एम्पियर था तो 10 का फुल लोड कितना होगा, 10 एम्पियर, लेकिन 1.25 कितना हो जाएगा, 12.5. अब उस पर जित लिमिट नहीं है और उस पर आप ऑपरेट करोगे तो क्या करेगा, और ज्यादा करोगे नहीं, मैं 1.5 पे ऑपरेट करूंगा और एफिशिएंसी डिक्रीज होगी, नहीं मैं पूरे 2 गुना पे करूंगा. नहीं करते? जैसे आज टुडे in our program there was flickering was there continuously. Why was the flickering was there? Because the whole program was on generator, but the generator is of not that of capacity that it can bear this the load of that all fans, AC and all this, so it was flickering. It was, and if you continuously operate it for a longer period, say 5 to 10 hours, what will happen? चलेगा, अच्छा, थिंग्स विल बी वैनिश, जनरेटर खराब हो जाएगा और बस हम पंखी से हवा खाएंगे फिर जब भी लाइट जाएगी. सो इट इज ऑलवेज बीइंग एडवाइजेबल टू ऑपरेट द थिंग्स विद इन द लिमिट्स, विद इन इट्स रेटेड करंट. ये रेटेड इसलिए दिया जाता है आपको कि भाई हमने टेस्ट किया है, इसका करंट मैक्सिमम कितना है, 10 एम्पियर है, इससे ज्यादा इसमें करंट मत बहाना. मगर लालच बुरी भला है, आदमी लालच करता है, चलने दो यार, ये भी एसी चला दो, ये भी एसी चला दो, कोई बात नहीं, तीसरा और चल रहा है ना, कब तक चलेगा, फिर एक दिन सिस्टम खराब होगा. सो वन लेसन इज ऑल्सो देयर दैट सिस्टम शुड नॉट बी ऑपरेटेड बियॉन्ड इट्स रेटेड कैपेसिटी, आइदर इट इज पावर, करंट और वोल्टेज. नाउ
You can be asked another type of question. Okay, efficiency is given, two efficiencies are given, and you are asked to find out the copper loss and iron loss. ठीक है, तो ये इक्वेशन बना के करना. जस्ट यू कैन राइट डाउन वन क्वेश्चन. द एफिशिएंसी ऑफ ए Before writing this, write down B part in the same question. Calculate the load. Calculate the load. Bracket में you can write down kV output. Bracket closed. kV output. Bracket closed. At which maximum efficiency occurs, and also the value of maximum efficiency at 0.8 power factor. Now a very important question has been asked. Now you have to utilize the recent derivation which I have given you. What is the derivation I have given you? That at maximum efficiency, copper loss is equal to iron loss. Everybody has written the question? Now how to attempt this question? This is a part of the same question, B part. In the A part, you have calculated what? Efficiency at different loads, half, 1/4, 3/4, full load, 1/4. Now B part is saying, calculate the, what is calculate the load, okay, at which maximum efficiency occurs. Now एक जनरली एक मिसनोमर रहता है लोगों के दिमाग में, एक गलतफहमी. मिसनोमर मींस गलतफहमी कि ट्रांसफार्मर की मैक्सिमम एफिशिएंसी कहां पर होगी. लोड के अभी मालूम नहीं है आपको, लेकिन जनरली एक आंसर ये मिलता सर फुल लोड पे. यही एक जनरल कॉमन नहीं. इट इज नॉट एट फुल लोड. इज इट क्लियर? It is always a value different from the full load. That we will calculate how. But we know one condition, that at maximum efficiency copper loss will be equal to iron loss. तो अब इसी का हम यूज करते हैं बी पार्ट का. So I know that P iron is equal to P copper at maximum. Clear? Iron loss is all, the iron loss is fixed. ये कांस्टेंट है. ठीक है, कितने हैं इस क्वेश्चन में? अब ये कॉपर लॉस अभी हम कुछ नहीं कह सकते. क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि हमें ये नहीं मालूम है कि ये जो कंडीशन है आयरन लॉस और कॉपर किस लोड करंट पे, फुल लोड करंट पे ये नहीं है. इट इज डिफरेंट फ्रॉम द फुल लोड. लेट्स से द रेशियो बी एक्स ऑफ द फुल लोड करंट. सपोज लेट इट बी ऑपरेटिंग एट एक्स टाइम्स द फुल लोड करंट. Okay, so at that time how much will be the full load copper loss? This is clear? This is clear? Right? Let the efficiency, maximum efficiency is occurring at x fraction of full load. So what will be the copper loss at that? X square times the full load copper loss you already know. How much?
अभी किया था ना 80 वॉट, है किया था नहीं किया था 80 वॉट, तो एक्स स्क्वायर कितना हो गया, अंडर रूट कितना आया, यस करेक्ट 5/8 है, ध्यान रखना ये 5/8 है। दिस इज क्लियर और नॉट अधिकारी, इट इज क्लियर, हाउ मच इट इज कमिंग 0.79, this 0.79 is the fraction of the full load current at which it is not occurring at x is equal to 1. X is equal to 1 means full load current, but it is existing at which is approximately 0.8. Is it clear? So it is operating at 0.8 times the full load current. फुल लोड अगर 10 एम्पियर है तो मैक्सिमम एफिशिएंसी कितने पर होगी, 7.9 एम्पियर पे, 7.9 एम्पियर पे, लेकिन 10 एम्पियर पे नहीं होगी। अरे समझ में आया कि नहीं आया, अब कितनी होगी ये भी कैलकुलेट कर दिया, ये पूछा है ना। ऑल्सो द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम एफिशिएंसी, बी पार्ट लिखा आपने, उसी क्वेश्चन के बी पार्ट में सेकंड पार्ट क्या है, पहला पार्ट क्या है, कैलकुलेट द लोड ब्रैकेट में केवी आउटपुट। अब केवी आउटपुट पूछा है तो क्या निकाल सकते हैं केवी आउटपुट कितना होगा इस लोड पे, नथिंग बट 0.79। ट्रांसफॉर्मर की क्या रेटिंग है फुल लोड 10 केवीए। देखिए ये मैंने एक्स निकाला है, ये किस में निकाल रहा हूं केवीए, बताइए कितना आ रहा है 7.9 केवीए। और अगर आपको कहे एम्पियर में निकालो तो क्या करेंगे, एम्पियर कितना, फुल लोड करंट कितना है 4 एम्पियर, 4 एम्पियर है, तो इन टर्म्स ऑफ एम्पियर how much it will be 3.26 ampere. So in kVA output is 7.9 kVA, and in from current point of view it is operating at 3.26, 3 point, okay no problem, 16. Make it 3.16, clear? So it is very clear. First of all, please remove this misnomer or misconception that maximum efficiency will occur at full load. No, it will always occur at a load different from full load. Clear? Only the condition is that copper loss is equal to iron loss. Now with this much of background, we also talked about another concept called voltage regulation. I think so you people have gone through voltage regulation, you did the experiment in voltage regulation of a transformer, no? Now what do you mean by regulation? These words are very common. If you know English, you can easily understand what the things are there. Is it clear? Now what happens, government forms certain regulations under which you have to work. Beyond that regulation, it will be treated as an illegal or crime. Is it clear? Similarly, thing is there for our electrical technology also. Government has said that your devices will operate at particular voltage and particular frequency. Say what is the voltage?
230 volt. For single phase system, it is how much? 230 volt. And generally your devices are being designed for 220 volt. Is it not? Now, electricity board is delivering electricity to your home. Now, at the transformer end, suppose it is giving 230 volt. How much? Now, your house number is suppose 100 number. So, there will be a long distribution line which will be coming to your home. In between there will be voltage drop. पर ट्रांसफॉर्मर से आपके घर में आने तक कुछ ड्रॉप होगा और आपको मिल गया मान लो 218. कितना मिला? 18. शुरुआत कहां से हुई थी? 230 से. और आपको मिला कितना? चाहिए कितना था आपको? 220. कितना चाहिए था? फिर भी काम चला हुआ चल जाएगी, आपका बल्ब जल जाएगा. डिफरेंस कितना हुआ 220 में से? 2 volt. 2 volt drop is there, is it there? So we used to calculate this difference. We used to calculate this difference. कैसे कैलकुलेट करते हैं कि एक ट्रांसफॉर्मर को हम ऑपरेट करवाते हैं. ट्रांसफॉर्मर को हम एक ऑपरेट करवाते हैं. कैसे ऑपरेट करवाते हैं? प्राइमरी पे इस प्रकार की रेटिंग दी होती है, प्राइमरी वोल्टेज, और प्राइमरी पे आपने फुल वोल्टेज लगा दिया. क्या लगा दिया? फुल वोल्टेज. अब आप मेजर करेंगे सेकेंडरी पे विदाउट पुटिंग एनी लोड, विदाउट पुटिंग एनी लोड. सो दैट वोल्टेज विल बी कॉल्ड एज एन नो लोड वोल्टेज. दैट विल बी कॉल्ड एज एन. एक ट्रांसफॉर्मर था आपका इस प्रकार, यहां कितना लगाया आपने? रेटेड प्राइमरी वोल्टेज कितना लगाया? इसको ओपन रखा, आपको कुछ सेकेंडरी वोल्टेज मिला. नाउ दिस वोल्टेज सो ऑब्टेन कीपिंग द ट्रांसफॉर्मर एट नो लोड इज कॉल्ड वी नो लोड. अब हमने ट्रांसफॉर्मर नो लोड के लिए तो नहीं खरीदा. किसके लिए खरीदा? हमने ट्रांसफॉर्मर लगाया है मोहल्ले में, किसके लिए लगाया? उस पर लोड लगाने के लिए. लोड मीन्स हमारे ये घरों का जो बिजली का लोड है, पंखे का, एसी का, गीजर का, रेफ्रिजरेटर का, बल्ब का, ट्यूबलाइट का, ये सारा लोड लगाने के लिए लगाया कि नहीं लगाया? ठीक है. अब मैं ट्रांसफॉर्मर पर फुल लोड लगा देता हूं. क्या लगा देता हूं? फुल लोड का क्या मतलब हुआ? रेटेड करंट. रेटेड करंट ऑन द सेकेंडरी साइड. भाई फुल लोड के मतलब कई होते हैं. उसकी कैपेसिटी, केवीए के कैपेसिटी के अकॉर्डिंग, उसके करंट के कैपेसिटी के अकॉर्डिंग. लेकिन हमारे पास जो इजीली मेजरेबल थिंग क्या है? करंट. क्या है? करंट. मैंने इतना लोड ऑन कर दिया कि उसमें से मान लो उसका रेटेड करंट 10 एम्पियर है और सेकेंडरी में भी लोड में कितना करंट फ्लो हो रहा है? 10 एम्पियर. तो ये कंडीशन क्या कहलाएगी? ट्रांसफॉर्मर इज ऑपरेटिंग एट फुल लोड. ट्रांसफॉर्मर इज ऑपरेटिंग एट फुल लोड. यहां मैंने रेटेड प्राइमरी वोल्टेज लगाया. ये मेरा प्राइमरी, ये मेरी सेकेंडरी, और यहां मैंने एक फुल लोड लगा दिया. क्या लगाया? फुल लोड. दिस इज माई now I again will obtain certain terminal voltage. अरे ऑब्टेन होगा कि नहीं होगा?
इस लोड के अक्रॉस भी कुछ वोल्टेज होगा कि नहीं होगा? अब ये इसके बराबर नहीं होगा। पहले जब ओपन था तब क्या मिला मुझे? V नो लोड। अब जो मुझे मिलेगा ये क्या कहलाएगा? ये क्या कहलाएगा? ये क्या कहलाएगा? फुल लोड। अब मुझे कॉमन सेंस से बताइए, ये ज्यादा होगा या ये ज्यादा? कौन सा? फुल लोड ज्यादा होगा? श्योर? शुड आई लॉक इट? एवरीबडी एग्रीज? एवरीबडी एग्रीज दैट दिस V full load will be greater in comparison to V no load? Everybody agrees? सभी लोग एग्री कर रहे हैं? तो क्या कह रहे हैं आप? नो लोड ज्यादा होगा। कितने लोग कह रहे हैं नो लोड ज्यादा होगा? रेज हैंड्स। आप कह रहे हैं नो लोड ज्यादा होगा, इसका मतलब बाकी सब क्या कह रहे हैं? वी फुल लोड ज्यादा होगा। श्योर? तो मेजॉरिटी कह रही है एज पर द डेमोक्रेसी रूल्स मेजॉरिटी शुड विन, सो आई शुड लॉक द आंसर दैट वी फुल लोड शुड बी will be greater in comparison to V no load. Should I lock? Yes, कंप्यूटर जी, लॉक किया जाए। ये गलत जवाब है। ये गलत आंसर है, आप कंपटीशन से बाहर हो गए। द करेक्ट आंसर इज नो लोड विल बी इन जनरल विल बी ऑलवेज बी ग्रेटर देन। अब ये कॉमन सेंस क्यों है? देखो, आपको अगर खुला छोड़ दिया जाए, आपको बाइक दिला दी, लड़कियों को स्कूटी या एक्टिवा दिला दिया, इनको रॉयल एनफील्ड या कुछ भी बाइक दिला दी, जिंदगी पे मजे करने के लिए छोड़ दिया गया। आप क्या करोगे? घूमोगे एकदम दिमाग में, कोई लोड नहीं, नो लोड, खाओ पियो और एक आपके ऊपर इंजीनियरिंग भी करनी है, कंपटीशन भी क्लियर करना है, क्लासें भी अटेंड करनी है, प्रैक्टिकल भी अटेंड करना है, यू आर फुली लोडेड। सो हु विल बी मोर चीयरफुल, नो लोडेड और लोडेड? नो लोड। द सेम कॉन्सेप्ट इज देयर। नो लोड कितना चाहिए बोलो? पूरा 230 वोल्टेज मेरे पास है। जैसे उसके ऊपर बाहर लगाया, एक पंखा ऑन किया, ड्रॉप हुआ 230 से 228, फिर एक और लोड लगाया 226, फिर और लोड लगाया भारी 220, फिर एक और लोड लगाया 218, इस प्रकार फुल लोड लगा दिया और 230 से वोल्टेज कितना हो गया? सो इन जनरल योर फुल लोड वोल्टेज, टर्मिनल वोल्टेज विल बी ऑलवेज बी लेस देन। आइडियली हम क्या चाहते हैं? आदर्श अवस्था क्या? नो लोड। आइडियली हम चाहते हैं कि हमारा जो वोल्टेज मिले हमेशा हर किसी भी लोड पर, दैट शुड बी इक्वल टू द नो लोड वोल्टेज, नॉट नो लोड। तुम बोले नो लोड, नो लोड का मतलब टर्मिनल को खोली तो लोड ही क्यों लगा रहे हो सर? I was just asking that what is the ideal condition you want? You want that my thing should be fully loaded, but I should get a voltage equal to no load voltage. There should be no drop. So that difference will be how much then? 0. V no load minus V full load will be how much? 0. But this is not practically possible. This is practically not possible. Always there will be some drop from no load to
full load. So that drop we will measure by an electrical parameter which is called voltage regulation and is defined as V no load upon V full load upon V no load, and if you want in percentage multiply by 100. ये डिफरेंस हमें बताता है कि हमारा वोल्टेज रेगुलेशन कैसा है. ये डिफरेंस कम है, वी से इट इज ए गुड वोल्टेज रेगुलेशन, और ये डिफरेंस ज्यादा है तो हमारा क्या है, पुअर वोल्टेज रेगुलेशन. कैसे? मान लो आपका V नो लोड है 220 वोल्ट, कितना है, और V फुल लोड आपका है 210. डिफरेंस कितना हुआ, 10 अपॉन 220 विल बी परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन. अभी सिर्फ ऊपर वाले से समझिए 10. क्लियर? एक दूसरा मैं लेता हूं जिसका नो लोड है 220 वोल्ट और फुल लोड है 190 वोल्ट. फुल लोड कितना है, कितना डिफरेंस हुआ, 30. कौन सा बढ़िया है, कौन सा बढ़िया है? दिस इज गुड. 210 वोल्ट दे रहा है, नो लोड से सिर्फ 10 वोल्ट कम है, जबकि यहां 9 वोल्ट से. सो लोअर दिस वैल्यू बेटर विल बी द वोल्टेज रेगुलेशन, हायर दिस वैल्यू पुअर विल बी द वोल्टेज रेगुलेशन. तो अगर आपसे कोई पूछे दो ट्रांसफॉर्मर हैं, एक का वोल्टेज रेगुलेशन 10%, एक का 5%, विच इज बेटर, 5%. एफिशिएंसी में इसका उल्टा है, जिसकी ज्यादा एफिशिएंसी होगी वो बेटर है, मगर वोल्टेज रेगुलेशन में इसका जस्ट ऑपोजिट है, जिसका one which has low voltage regulation will be better, while with the higher voltage regulation will be poor. Clear? Definition is clear. How will you define voltage regulation? Difference of the no load voltage to full load voltage with respect to, and in terms of percentage multiply it by 100. Clear or not? So today we have given two concepts. One is regarding the condition for maximum efficiency. We have solved one numerical also, and the second is the voltage regulation. That's all for today.